problem. Have we done problem on that? Yes or no? क्या बात बच्चों, आज नाश्ता नुश्ता नहीं करके आए? आज पराठे परोठे नहीं खाए? क्या बात, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी? हाँ जी, चलो लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट शुरू की थी बेटा. वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4. So now we'll be starting with question number 5. So question is there on your screen, right students? Question number 5. तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में बेटा. इट इज चेक वेदर, ये 6 रेज टू पावर n है बच्चों. ये चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. See students, last time we have understood how to make the prime factors. देखिए, अगर आपको चेक करना है, ठीक है, कि वेदर द नंबर विल एग्जिस्ट विद 0 और नॉट, तो एक कंडीशन होती है बच्चों, एनी नंबर विद 0 if and only it has 2 and 5 in its prime factorization. अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 as well as 5 दोनों नहीं है, then it will not end with 0. Now अगर आप यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, so what it becomes 2 multiplied by 3 raised to power n. Here 2 is there. अच्छा, विजिबल ही नहीं है. अब विजिबल है बच्चों? Is this visible or not? Just a moment. Just a moment, let me check this. अच्छा जी, वो देखना जरा, उसमें नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे. अब नजर आ रहा है बच्चों? अभी भी नहीं आ रहा? हाउ मेनी कैन सी इट? थोड़ा और करते हैं इसको ना, फोन साइज बड़ा करना है. कैसे करना पड़ेगा? डार्क नहीं, कलर तो ब्लैकली है. और कौन सा है ये वाला? ये तो बिल्कुल नहीं नजर आएंगे. अब विजिबल है बच्चों? नाउ इट इज विजिबल. अब मेरी लाइट बंद करके देखो जरा. नजर नहीं आ रहा. ये लिख रहे हैं ना, बहुत लाइट नजर आ रहा है. अब आपने इतना ज्यादा कर दिया. अब विजिबल है स्टूडेंट्स? नाउ इट इज विजिबल और नॉट? Right, please. So now when we take 6 raised to power n, prime factorization of 6 have 2 and 3. Right student? It does not have 5.
if does not have 5, that means it will not end with 0. Hence the answer will be no. This will not end with 0. Right, students? Is this clear? Is it clear or not? हमने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर लिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है. Have we done this question? हाँ जी. Next question. Have we done this question? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13. आपको दो नंबर गिवन है. We have to show that both these numbers are composite numbers. Right? What is the definition of composite number, students? What is the definition? Yes, please tell me. Who will explain me what is composite numbers? Beta, those numbers which have two or more than two as its prime factors. बच्चे जिस भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स आते हैं, they are known as composite number. Now we have to prove that this number, there are two different numbers. First वाला number is 7 into 11 into 13 plus 13. So we have these two numbers. We have to show these are composite. देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म आपके पास ये है और ये है दोनों. From both these terms you can take 13 common. जब आपने 13 कॉमन लिया, so you are left with 7 into 11 plus 1. Is it clear? Is this clear or not? Yeah. Now इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो you got 77 plus 1, which is 13 into 78. Now if you make the prime factor of 78, what will be the prime factor of 78? 2 into 3 into 13. Is this clear? So now it has more than two prime factors in its prime factorization. दो से ज्यादा prime factors आ गए बेटा, 13, 2, 3 and 13. So therefore it will be composite number. This is composite number. Is it clear? Is this clear बच्चों? Yes or no? Yes. Right. So next part we can do similarly. If you do next part, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Again, one number is this, another is only 5. You can take 5 common. So here you are left with राइट बच्चों. इसको मल्टीप्लाई किया तो बताइए जरा कितना आ रहा है. 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 multiplied by 7 into 6 is 42. So again this will also be a composite number because इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में there will be more than two primes. ठीक है बच्चे, एक तो ये प्राइम बन गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे either it will be a prime or it can be further factorized. So both the cases it will have more than two prime factors, right? So therefore this number is also a composite number. Is this clear? Is it clear or not? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. फिर हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let P, Q, R be the three distinct prime numbers. Check whether P into Q into R plus Q is a composite number or not. सेम क्वेश्चन बच्चों, अभी जो हमने किया है ना लास्ट क्वेश्चन,
totally same question. In this, we have number PQR plus Q. You can take Q common. So we are left with PR plus 1. So one prime is this, another is this. So therefore this number will be composite number. अच्छा, आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे जी? He has asked P into Q. Further give an example. अच्छा, first part is this. Further give an example for three distinct prime PQR such that P into Q into R plus 1 is a composite number. आपको एग्जाम्पल देने हैं बच्चों पी क्यू आर के, राइट? ठीक है, सच दैट P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर. आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज इट इज 2 3 4. सो व्हेन यू डू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों? 24 प्लस 1 25. Is 25 a composite number or not? Is 25 composite or not? बेटा, इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो व्हाट इट बिकम? So it has two prime factors. It is a product of two primes. So therefore it will be a composite number. Another example, one more example you can take. Is this clear? This is a composite, this is a prime. अच्छा, अब आपको यहाँ पे you have to take P, Q, R in such a way that they are prime. So what you can do? What you can do बच्चों? अगर मैं यहाँ पे 4 के प्लेस पे 5 ले लूँ, if I take this as 5, right? If I take R as 5, what is the product of 2 into 3 into 5? Plus 1. What this becomes? Is 31 a prime number or not? तो दोनों एग्जांपल्स हमने दे दिए बेटा. यहाँ पे कंपोजिट लेना था, यहाँ पे प्राइम लेना था जी. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर बच्चों? तो इस तरह से यू कैन गिव द एग्जांपल्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th question and 5th question both are same. Here it is given 4 raised to power n. Correct this question, right बच्चों? This is, in this question also it will be 4 raised to power n. This will be 4 raised to power n, right? Again same way, आप जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं तो इट बिकम 2 into 2 raised to power n. So it has 2 but does not have 5 in its prime factorization. अगर 5 नहीं है तो therefore it will not end with 0. Is this clear? No talking बच्चों, no talking please. Rose, if you have any doubt please talk to me. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम. राइट स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. प्लीज डू द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों. फाइंड द एलसीएम ऑफ 960 and 240. Please find the LCM of 240 and 960. Very simple question. I think all of you can do it. No laughing. 10th rows, front bench student. हाँ जी बच्चों, हो गया?
LCM of 240 and 960. Yes, स्टूडेंट्स, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बच्चों. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओनली 1 2 3 4 5. एलटी में किया है लोगों ने. लोटस में, बाकी किसी सेक्शन में, डेफोडिल से कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए. यस, एनीवन फ्रॉम रोज? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इन रोज? सर, my humble request, please check their notebooks whether they are doing it or not. Very basic concepts. Yes, students, please tell me what will be the answer for this. माइक ऑन करो अपना बच्चे पहले आके. 960. वेरी गुड स्टूडेंट्स. देखिए बच्चों, जब आपको दोनों का एलसीएम निकालना है, so two methods you can apply here. One is the division method, another is a prime factorization method. So division method for finding the LCM is this: divide by 2, 120 and 480. Again 2, 60, 240. Again 2, what it will be? 30 and अब देखिए यहाँ 120 से स्टार्ट किया था, यहाँ 120 आ गया, 240 आ गया. So you can directly take 330, 1 and here 4. So 4 ones are. So take the product of all these three numbers, all numbers, it will come out to be 960. Right, students? So option A will be the correct option for this question. Right? This is the correct option for LCM of 960 and 240 is 960 बचे. I have explained you in the previous class the LCM. देखिए आप लोगों को ना, ये अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग. I have explained you कि LCM of any two numbers is either equal to the greatest one or greater than the greatest one. Right? तो अब इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कितना है? 960. ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देर इज ओनली वन चॉइस विच इज इक्वल टू 960. उसके ऊपर वाला कोई नंबर नहीं है. सो वेरी जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कुड हैव टेल द आंसर. समझ में आया बच्चों? इन केस एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम and you are doing the MCQ. This is the way to do it. Right? So we move on to the next question. Very important question. This type of questions students generally face problem. Now what is the question here, students? It is given that the sum of two numbers is 1215, 1215, and their HCF is 81. Their HCF is 81. Then the possible pairs of such numbers are. Now it is given HCF of the numbers is 81, right? Means आपका जो दोनों numbers हैं, they are divisible by 81, and their sum is also given. If you take, let 81 बच्चे उनकी common ratio हो जाएगी. 81 will be the common ratio. So you can take the number are 81x and 81y, and this equal to 1215. ये हमारे पास दोनों नंबर्स हो गए बच्चों. ये वाला स्टेप कितने लोगों को समझ नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज टेल मी बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया जी? देखिए बेटा, अगर दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों नंबर्स जो हैं उनका एक फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 हो गया. यस और नो? अगर वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 81 इज देयर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? अगर दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 81 है, तो एक नंबर 81x हो सकता है, 81y.
यस और नो? यस सर। ठीक है, एक्स वाई जो है उनकी कॉमन रेशियो हो गई बच्चों। तो हमें गिवन है नंबर्स का सम जो है 1215 है, तो दोनों नंबर्स का सम इक्वल टू 1215 हो गया। यस और नो? आप देखेंगे 81 को आपने कॉमन लिया, इज इज क्लियर? यहाँ पे 1215, मुझे चेक करके बताओ बच्चों, 1215 का फैक्टर है 81 या नहीं? 1215, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 81 से, ये पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 81 इंटू 15। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जी। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। आपको पूछ रहे हैं काइंडली रिप्लाई यस यस सर। समझ आया था यस बोलो, नहीं समझ आया था नो बोलो। बेटा देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। ठीक है जी, सो आप दोनों तरफ से 81 को कट कर दो। सो नाउ यू हैव गॉट द इक्वेशन। आप लोगों के पास इक्वेशन आ गई बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आ गई बच्चों इक्वेशन। यस और नो? बेटा यहां तक कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई। हाँ जी बताओ बताओ, डिस्कशन नहीं करना आपस में, डाउट है तो पूछो बेटा। इफ यू हैव द डाउट्स प्लीज आस्क। राइट, सो x प्लस वाई इज 15। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं जिनका सम 15 आए? 1 प्लस 14, और कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? 9 प्लस 6 2 प्लस 13, 3 प्लस 4 प्लस 11, और कौन कौन से? 3 प्लस 10 3, सॉरी 15 है ना, सॉरी 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 सॉरी, 12 होगा यहाँ पे। 3 प्लस 12, 4 प्लस 11, ठीक है जी, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8। और कोई बन सकते हैं पेयर्स? एनी अदर पेयर बेटा? बाकी तो फिर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है बेटा। 1 प्लस 14 में कुछ कॉमन है बेटा? इज देयर इज सम कॉमन बिटवीन 1 एंड 14? 1 और 14 में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है? यस और नो? नहीं है ना बच्चे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा। सेकंड आ जाओ, 2 एंड 13, यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा। 3 एंड 12, यहाँ पे तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में बच्चे, तो ये वाला तो फैक्टर नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो HCF की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 नहीं होगा उस केस में, इट विल बी 81 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो दिस विल नॉट बी द फैक्टर। अनदर 4 प्लस 11, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो वन फैक्टर विल बी दिस। 5 प्लस 10 में 5 कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 प्लस 9 में 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों। 7 प्लस 8, नथिंग इज कॉमन, सो वन फैक्टर कैन बी दिस। तो हाउ मेनी फैक्टर्स यू गॉट? हाउ मेनी पेयर्स? हाउ मेनी पेयर्स यू गॉट स्टूडेंट्स? 4 पेयर्स, so answer will be 4। have you understood this question or not बच्चे? मैंने लगा तुम्हें समझ आया। बच्चा अगर नहीं आया तो प्लीज टेल मी। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म की। सर नहीं आया। हाँ जी, मैं क्लास से क्वेश्चन करा के देखूं तो देखो नहीं सर नहीं समझ। नहीं समझ आया कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 नंबर है बेटा, नो टॉकिंग प्लीज, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। देयर आर 2 numbers,
उनका HCF दोनों नंबर का HCF इज 81 and their sum is 1215. Now when it is given that the sum of two number is 1 to 15 और दोनों का HCF 81 है, तो that mean both the number will have 80. Anyone want to say something in row section? देखिए बच्चे, अगर 81 उनका HCF है तो both number will be having 81 as their factor. अगर मैं ले रहा हूं उनकी दोनों की कॉमन रेशियो x एंड y, so one number will be 81x, another will be 81y. yes or no? मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको. देखिए, सपोज हमारे पास दो नंबर है बेटा 4 and 12. इन दोनों का HCF कितना है बच्चे? व्हाट इज द HCF ऑफ 4 and 12? नो लाफिंग, नो लाफिंग बेटा, नो लाफिंग. फिर आप कहोगे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. सेक्शन रोज, फ्रंट बेंच स्टूडेंट्स, सेकंड बेंच रादर. हाँ जी, 4 और 12 का HCF विल बी 4. इन दोनों का HCF 4 है, मींस दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. तो 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 into 1 एंड 12 को लिख सकता हूँ 4 into 3. तो दिस इज x, दिस इज y. So can I write in the form of 4x plus 4y? Because 4 is their HCF. So similarly in this case I can write it as 81x plus 81y equal to 1215. तो 1215 जो है वो 81 into 15 उसके फैक्टर्स बन रहे हैं. 81 दोनों तरफ से कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ गया x plus y is equal to 15. मीन्स जो फैक्टर्स हैं उनकी जो रेशियो आ रही है वो x प्लस वाई का सम 15 आ रहा है. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 15. नाउ अब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे. क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? 1 14, 2 13, 3 12, 4 11, 5 10, 6 9, 7 8. अब इन जो पेयर्स के अंदर फर्दर जो पेयर है 3 प्लस 12, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9, इनके अंदर कुछ और भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. तो दे कैन नॉट बी द HCF. 81 कैन नॉट बी द HCF अगर x प्लस वाई जो है ये 3 and 12 है, 5 and 10 है एंड 6 and 9 है. सो देयरफॉर remaining four factors will be the different pairs who has the HCF 81 and the sum of the numbers is 1 to 15. Is this clear now students? If yes, please raise your hand. इसको नोट कर लो बेटा, घर पे जाके एक बार अच्छे से देखना क्वेश्चन को. राइट, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 26. राइट, so you can note down if you wish to. If you don't want, we can move to the next question. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. इफ यू डोंट वांट टू नोट. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1200. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF? आपको बताना है बच्चों विच कैन नॉट बी देयर HCF. दो नंबर्स का LCM 1200 है. राइट, तो व्हाट कैन नॉट बी देयर LCM? बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए देख के जरा क्वेश्चन को. We know that one thing, HCF is a factor of ये चीज पता है आप लोगों को बेटा? HCF is a factor of LCM. अब यहां पे देखो कौन सा नंबर जो है, पीछे आ गए हम. क्वेश्चन एक मिनट, ये वाला. हाँ जी बच्चों, यहाँ पे बेटा देखिए 1200 जो है, इन चार नंबर में से कौन सा नंबर जो है 1200 का फैक्टर नहीं है? 1200 is divisible by 200 also, 400 also, as well as 600 also.
but 1200 is not divisible by 500. So therefore, right answer will be 500. So 500 cannot be the HCF of the two numbers whose LCM is 1200. आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो बच्चे. HCF is always a factor of LCM. ठीक है. Now comes to the next question, fourth. Find the LCM and SC of 6 and 20 by the prime factorization method. This you can do बच्चों. ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा. HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है. So we move on to the next question. Yes, student, next question. Find the HCF and LCM of the following pair of integers and verify that. Find कीजिए बच्चों दोनों नंबर्स का HCF और LCM. Please find out 510 and 92. Find their HCF and LCM. और उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे फार्मूला की जी. Beta, no talking please. Daffodil, center line, two girls on the second bench, continuously talking from the last 5 minutes. Please find the LCM and SCF of 510 and 92. And anyone completed? हाँ जी, section daffodil, center line, last girls, last bench girls, please come forward. आ जाओ दोनों, आ जाओ बेटा आप. Both of you please come. अपनी नोटबुक लेके आनी है बेटा, नोटबुक लेके आनी है. आ जाओ, जल्दी आओ. अपनी नोटबुक लेके आओ बेटा. डोंट बी स्मार्ट. व्हाट्स योर गुड नेम? प्लीज टेल मी. जिस स्टूडेंट ने नोटबुक एक्सचेंज की थी, प्लीज टेल मी योर नेम. इधर आओ जरा, कैमरे के अंदर आओ, बाहर नहीं. हाँ जी, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम. हाँ जी, आवाज अब आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा. कंटिन्यूअसली यू वाज टॉकिंग.
और अब आप उससे अपना नोटबुक एक्सचेंज करके आंसर बताने आ रहे थे. व्हाई यू हैव चेंज द नोटबुक? स्पीक लाउडर. सर उसने बोला था कि ये कॉपी ले जाओ. नहीं, उसने बोला बेटा आपका डिसीजन है ना वो, तो लेना या नहीं लेना. व्हाई यू हैव टेकन? एग्जाम में कोई आपको पर्ची दे रहा होगा, पर्ची ले लेंगे और आप फ्लाइंग स्क्वाड आएगा तो आप फंस जाएंगे. ऐसा करोगे वहां पे? यस, टेल मी व्हाट यू हैव डन. सर एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं. एचसीएफ कितना आया बेटा इनका? ट्यूशन निकालना है, अभी किया है. एचसीएफ एचसीएफ कितना आया बोलिए जरा, आवाज नहीं क्लियर है आपकी. 2 आया है. व्हाट इज एलसीएम? एचसीएफ अभी फाइंड करना है. डू इट फास्ट. नो टॉकिंग प्लीज. हाँ जी, एनीवन हैज डन द एलसीएम? एचसीएफ सबका 2 आ गया बच्चों. देखिए आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए बेटा दोनों नंबर्स के. 510 इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए आपने. 2 उसके बाद 5 51 3 17. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों. नाउ कम्स टू द 92. 92 is 2 46 2 23. तो ये बन गए बच्चों प्राइम फैक्टर्स, राइट. तो ओनली थिंग कॉमन इज दिस 2, राइट. तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? व्हाट विल बी एलसीएम? बाकी सारे जो फैक्टर्स आ गए वो एलसीएम आ जाएंगे. 2 वन टाइम, 2 into 5 into 3 into 17, 2 into 5 into 3 into 17. So this will be the LCM, राइट बच्चों. ये सारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ये LCM. Now you have to prove that the product of HCF and LCM is, this is LCM. What is HCF? 2. This is HCF. We have to prove that the product of these HCF and LCM is equal to the product of the numbers. So you can prove that multiply both sides will be equal. हो जाएगा बच्चों ये. Rows, section rows, left side, second last bench, both the girls please stand up. हाँ जो देख रही है ना गर्ल्स इधर उधर, प्लीज स्टैंड अप. आप हो जाओ खड़े. सेकंड लास्ट बेंच, बोथ ऑफ यू कम फॉरवर्ड. हाँ जी बच्चे, आपने कर लिया? यस और नो? यस सर. क्या बेटा एलसीएम की वैल्यू क्या आई है? हाँ जी 2 3 द्वारा बोलो जरा. 2 3 ये आया बच्चों? हाँ जी बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोलो जरा. बाकी बच्चे जरा चुप रहेंगे. एवरीवन शुड बी कीप क्वाइट. हाँ जी बोलो जरा. 2 3 4 6 0. 2 3 4 6 0. राइट बेटा. 510 को आपने मल्टीप्लाई करना है 46 से. तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है जी. चेक कर लेते हैं एक बार. 46. यस दिस इज करेक्ट बेटा. प्लीज सिट डाउन. नाउ डू द सेकंड पार्ट. नाउ डू द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स. Find the HCF and LCM of 336 and 54. ये वाला पार्ट हो जाएगा आप लोगों का. ये तो सेम पार्ट है बेटा, हो जाएगा ये वाला. Now look at the second question. This question was there in the recently concluded exam. ये देख रहे हो आप बच्चों?
This question was there in March exams. If the HCF of 135x square and 189x square is 108, find the value of x. You have to find the value of x. कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? HCF गिवन है. सबसे पहले क्या करेंगे आप? इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटा? 135 और 189 के प्राइम फैक्टर्स बना दो बेटा. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 135? 3 15, 3 5. तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा 135 के. नाउ मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 189. 3 6. तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा इसके. 189 किसके इक्वल आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 135 आ रहा है बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5. यहां तो कोई डाउट बेटा? एनीथिंग नॉट क्लियर? नाउ इन दोनों, अगर यहाँ पे मैं इनके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी था मल्टीप्लाई में बेटा. एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है. यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3. सो देयर फोर 3 into 3 into 3 into x square. Is this the SCF? Is this the SCF or not? ये SCF आ गया ना बेटा. देखो जो हमारे पास इंटीजर्स थे उनका SCF आ गया 3 into 3 into 3 और वेरिएबल जो है x square एज इट इज आ गया. तो हमारे पास टोटल SCF क्या बन गया? 3 into 3 into 3 into x square that will be equal to 108. और यहां से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2. x की वैल्यू वैसे प्लस माइनस 2 आती है बट वी विल नॉट टेक -2, राइट? सो इट विल बी ओनली 2. द वैल्यू ऑफ x इज 2, right students? Now your chemistry class will be there. Thank you very much.